Very good morning, everyone. Hope you all are fine. In last session, we learned about contact forces. Okay? About which contact forces we have learned? Give me examples of contact forces. It's friction and muscular force. Very good. Okay, muscular force and friction. So both are contact force. For that, both the surface should be in contact. And now, in this session, we will see about non-contact forces. Okay? From the name only, you can understand non-contact forces. That means no contact required or forces. So one of them is magnetic force. So here activity 11.6 is given. It is a very easy activity. So for that, what you have to do? So you have to take two bar magnets. Okay, you have to place one bar magnet on the wooden rollers or pencils. Okay, so that way it can roll easily. Now you have to bring one more bar magnet, its end with near to that bar magnet which you have put on the wooden rollers or pencils. Okay, now what you will observe? It will attract to the other magnet. Okay, so when you put one end of the magnet with the that magnet which is placed on the wooden roller or pencils, so that time if unlike poles are there, the bar magnet will be attracted by the other magnet. Okay, but what happened if you put like poles together, like poles near to each other? So that time what will happen? Repulsion will be there. Okay, because of repulsion they will go far from each other. एक दूसरे से दूर जाएंगे, बराबर repulsion होगा. So in standard 6 also you have learned this topic ना, right? Standard 6 में बेटा आया था ना आपको कि like pole attract each other and unlike pole repulse each other, right? रुद्र यहाँ फ्रिक्शन नहीं आएगा बेटा. It is a magnetic force, रुद्र. Okay, so in this activity only it is given. So when you put that other magnet near that magnet which is on wooden rollers or pencils, that attract if unlike poles are there, both magnet will attract each other. If like poles are there, both magnet will repulse each other. But can you tell me that if we are concluding it as a force, okay, हम अगर फोर्स के बारे में सोचते हैं तो which forces are acting? चलो, जब भी वो अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है? पुल या पुश? पुल है ना. और जब भी वो रिपल्स होते हैं इट इज अ पुश, बराबर. तो हियर आल्सो यू कैन सी the force is acting on that magnet. Okay, it is magnetic force. But the most important thing is for this force they doesn't require contact. वो मैग्नेट को एक दूसरे को टच करवाने की जरूरत नहीं है. If you are taking instead of that both magnet, one bar magnet and some iron nails or iron pieces, so that way also you can see the magnet will attract iron nails without touching them because of magnetic force. So magnetic force is a example of non-contact force. Understood everyone? Non-contact force कैसे है? magnetic force पता चला बेटा सबको? Okay, it is very easy. So attraction or repulsion between objects can be also seen as another form of pull or push in this example. Do that for that you have to make both the magnet in contact? No. Okay, without giving contact, you are able to give force. Okay, very good. Okay, so a magnet can exert a force on other magnet without being in contact with it.
The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. So non-contact force की जब भी आपको definition पूछे, you have to write that. Okay? आएगा सबको लिखना. So an object can exert a force on other object without contact, and this type of force is called non-contact force. सिर्फ non-contact force का पूछा हो तो आपको ऐसा लिखना है. If they have asked magnetic force, then तो आपको ये definition लिखना है. Magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it, and this the force exerted by a magnet is called magnetic force. Understood? So similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force. बराबर. तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आयन का भी जब अट्रैक्ट करता है, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ non-contact force. Okay, very easy. Now next one is electrostatic force. Okay, electrostatic force, it is also example of non-contact force. So here one activity is given, beta. Take a plastic straw and cut it into nearly 2 equal pieces. आपको 2 पीस में उसको कट करना है. Suspend one of the pieces from the edge of the table with the help of the piece of thread. तो आपको यहाँ टेबल दिखता है फिगर 11.11 में. तो थ्रेड से एक को बांध दिया है, उसको सस्पेंड, उसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड करके रखा है, राइट. नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रो इन योर हैंड and rub it its free end with a sheet of paper. ओके, तो आपको क्या करना है, दूसरा जो पीस है बराबर स्ट्रो का, उसको अपने हाथ में लेना है और उसका जो अदर एंड है उसको रब करना है बराबर पेपर के ऊपर. ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रो नियर द सस्पेंडेड स्ट्रो. तो अब ये हाथ में जो स्ट्रो है, जिस एंड को आपने रब किया है, उसको ये जो सस्पेंडेड जो स्ट्रो है उसके एक एंड के पास ले जाना है बराबर. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट 2 पीसेस डू नॉट टच ईच अदर. वो एक दूसरे को टच नहीं करवाना है बराबर. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बताओ क्या है, क्या होगा, बोलो. यस, अट्रैक्ट होगा, बोलो. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसके ऊपर होगा, राइट. चलो बोलो क्या होगा उससे. ओके चलो, अब भी एक एक्टिविटी, उसके ऊपर से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा. तो नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस, ओके, ऑफ स्ट्रो विथ अ शीट ऑफ पेपर बराबर. अभी जो फ्री एंड है ना, सस्पेंडेड पीस जो है, अपने जो थ्रेड से उसको सस्पेंड किया है, फ्रीली सस्पेंड, यूज दैट पीस. ओके, उसका एक एंड आप रब करो. Again bring the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw. What do you observe now? चलो अभी तो बहुत इजी हो गया बेटा. चलो अभी एक को तो आपने रब किया था पेपर से, राइट, जो आपके हाथ में था, उसका एक एंड आपने रब किया था. बट अभी आप क्या कर रहे हो, दूसरा जो सस्पेंडेड स्ट्रो है उसका एक एंड भी आप रब कर रहे हो, और दोनों रब किए हुए एंड एक दूसरे के नजदीक लाते हो. लाओ बताओ क्या होगा. नो, जय, रॉन्ग आंसर. निशिता, रॉन्ग आंसर. रोजलिन, राइट आंसर. ओके चलो, तो पहले क्या होगा बेटा, जब आपने एक ही एंड रब किया है, राइट, और दूसरा सस्पेंडेड जो स्ट्रो है उसका एंड रब नहीं किया है, और जब आप रब किया हुआ ले जाओगे अपने हाथ में जो है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. अंडरस्टूड, क्योंकि किसी एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बराबर. चलो दोनों एंड रब कर दिए. अभी सस्पेंडेड जो स्ट्रो था उसका एक एंड रब किया, एज वेल एज आपके हाथ में जो स्ट्रो है उसको भी रब किया. अब भी एक दूसरे के पास ले गए. नाउ दे विल रिपल ईच अदर बराबर, दे विल रिपल ईच अदर. अंडरस्टूड, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे जब दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तब बराबर, लाइक मैग्नेट ओनली. अंडरस्टूड एवरीवन. A straw rubbed with paper attract another straw but repulse it if it has also been rubbed with a sheet of paper. तो किसी एक स्ट्रो को अगर आपने पेपर से रब किया है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट विल अट्रैक्ट द अदर स्ट्रो. ओके,
But if you have generated electrostatic force in both the straws, then they will repel each other. जब आप नजदीक ले जाओगे, अंडरस्टूड? बराबर? तो straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with the sheet of paper. So जब आपने उसको पेपर शीट से रब किया स्ट्रो को, then उसमें क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हुआ है. ओके, सच अ स्ट्रो इज एन एग्जांपल ऑफ चार्ज्ड बॉडी. उसको आपने रब किया, नाउ इट विल एक्ट एज अ चार्ज्ड बॉडी, कि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हुआ है. अंडरस्टूड? बहुत ध्यान देना बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बराबर? द फोर्स एक्सिक्यूटेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. चलो वंस अगेन मैं उसको एग्जैक्टली आपको समझाती हूँ कि अगर एक चार्ज बॉडी है, हमने एक हाथ में जो स्ट्रॉ लिया था उसको रब किया, नाउ इट विल एक्ट एज अ चार्ज बॉडी. पता चलता है ना बेटा? आपके हाथ में जो स्ट्रॉ है उसको आपने रब किया तो वो चार्ज बॉडी बन गई अभी. बराबर? चलो उसके लिए अनचार्ज बॉडी कौन सी है? अनचार्ज्ड. जो स्ट्रो सस्पेंडेड है उसके पास आप ले जा रहे हो, दैट मींस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले जा रहे हो. अभी आपने वो जो फ्रीली सस्पेंडेड स्ट्रो है उसको भी रब कर दिया, दोनों को रब किया, दैट मींस नाउ बोथ आर चार्ज्ड बॉडी. अंडरस्टूड एवरीवन? राइट? तो क्या होगा बेटा? एक चार्ज बॉडी होगी और एक अनचार्ज बॉडी होगी, तो अट्रैक्शन होगा. दोनों ही चार्ज बॉडी होगी, रिपल्सन होगा. अंडरस्टूड? वेरी इजी ना? This force comes into play even when the bodies are not in contact. इसको कांटेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, जो मैग्नेट के जैसे दोनों स्ट्रो को टच करवाने की जरूरत नहीं है. बराबर? तो क्या इसके लिए, इस फोर्स के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स. ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स. ओके, और इसके बारे में हम चैप्टर 15 में आगे सीखने वाले हैं. बराबर? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में. तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत काम में आएगा बेटा ये, तो प्लीज बी केयरफुल. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज, you all know, gravitational force. ओके, चलो फर्स्ट वन नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा था बेटा? मैग्नेटिक फोर्स. पता चला उसमें. सेकंड वन वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें पता चला बेटा. दोनों में पता चल गया है, बहुत इजी है. ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी gravitational force. Now you know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand. ओके, आपके हाथ में कोई भी चीज है और वो आपके हाथ से स्लिप हो गई, गिर गई, पेन है, पेंसिल है, रबर है, कॉइन है, व्हाटएवर. बराबर? कहाँ गिरेगी? ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? ग्राउंड पे ही गिरने वाली है ना. बराबर? लीव्स या फ्रूट्स जो भी फॉल होते हैं ग्राउंड पे आते ऊपर जाते हैं बेटा. ओके, अभी सबको ये तो सोचने की जरूरत नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब तो हो ही गया है पहले से ही. बराबर? एप्पल खा रहा था कोई और नीचे गिर गया और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ढूंढना शुरू कर दिया. कौन था वो? कौन थे वो महान साइंटिस्ट? या रोहन. वेरी गुड. बराबर? न्यूटन. सो सर आइजैक न्यूटन. ओके, अपना आइजैक भी कुछ ढूंढ लेगा फिर. आइजैक, यू आर देयर ना? क्लास में हो ना? आप भी कुछ ढूंढ लेना फिर. राइट? सो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने ढूंढा था ऑलरेडी. आप सबको ऐसा होगा कि क्या ये सब करने की क्या सब जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा एप्पल नहीं खा सकते, तो हमको पढ़ना पड़ रहा है. राइट? चलो. सो it is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without a force acting on it? चलो, अभी एप्पल आपके हाथ में था या कॉइन आपके हाथ में था या कुछ भी आपके हाथ में था, पेंसिल आपके हाथ में थी. ओके, एंड जब भी वो स्लिप हुआ वो नीचे ही गिरा. बराबर? उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया. जब वो हाथ में था स्टेशनरी मोशन में था, आपके हाथ में फिक्स था या तो बराबर, तो वहां से स्लिप हुआ है, मोशन चेंज हुआ. अभी हमने तो ऐसा बोला था कि जब तक फोर्स नहीं लगाते तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता. दैट मीन्स सम फोर्स. बराबर? कोई तो फोर्स लग रहा है, सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट. राइट?
which is this force? So this force is a gravitational force. Okay, so objects or things, कोई भी object, कोई भी चीज, बराबर, things fall towards the earth because it pulls them. तो अर्थ उसको पुल करती है. दैट्स व्हाई एनी ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप ऐसे हवा में ऊपर उछालते हो फिर भी वो वापस ग्राउंड पे ही आती है, बराबर, बिकॉज अर्थ पुल्स देम. ओके, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके, so what is the force of gravity? The objects or things fall towards the earth because it pulls them, and this force is called the force of gravity. और जस्ट ग्रेविटी, उसको ग्रेविटी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं, व्हाटएवर. दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. अट्रैक्टिव फोर्स है, अर्थ अट्रैक्ट करती है ना, इसीलिए आता है ना वो, बराबर, पुल करती है उसको. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी के पर ये लगता ही है. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. हम जागते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते, कुछ भी करो बेटा, हम जाने कि नहीं जाने, बराबर, हमको पता है कि नहीं पता है, अवेयर और नॉट अवेयर, एवरी टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सॉरी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम पे लगता ही है. अंडरस्टूड, बराबर. एवरी टाइम किसी भी चीज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होता ही है, विदाउट फेल. The force of gravity acts on all of us, बराबर, किसी भी टाइम पे. Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. चलो, टैप ओपन करते हो तो ऊपर क्यों नहीं जाता है, नीचे ही आता है पानी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बराबर, नीचे की तरफ भी बहता है. कभी आपने ऐसा देखा कि नदी ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, बराबर. चलो, कोई पहाड़ है तो ऊपर से नीचे आएगी, कोई भी रिवर नीचे से ऊपर जाती है बेटा, नहीं जाती है, बराबर. सो दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन. लिसन, बहुत केयरफुली आप सुनना बेटा, कि सिर्फ ऐसा नहीं है बेटा कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ का के रिलेटेड है, बराबर, सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है बेटा ये, बराबर. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अर्थ पे ही ये ग्रेविटी लगती है, बराबर. तो क्या है एक्चुअली, बराबर. तो देखो आप कि इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, बराबर, वेदर स्मॉल और लार्ज, exert a force on every other object. This force is known as the gravitational force. Most important, underline karo, whenever it is asked in the examination what is gravitational force, you have to write this answer, बराबर. तो क्या आंसर लिखना है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज exerts a force on every other object and this force is known as the gravitational force, बराबर. इस तरह से आपको डेफिनेशन लिखनी है, बराबर. एवरी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो ग्रेविटेशनल फोर्स तक, अंडरस्टूड. सो दो प्लैनेट है तो वो भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे, बराबर. अर्थ है और दूसरा प्लैनेट है वो भी लगा रहा है बेटा. तो एवरी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता ही है. अंडरस्टूड एवरीवन, बोलो कोई प्रॉब्लम है बेटा यहां तक? श्योर, वेरी गुड. ओके ओके, फाइन फाइन. सो आज हम यहाँ तक रहने देते हैं बेटा. सो अप टिल हियर प्लीज बी प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स केयरफुली. ओके, व्हाटएवर definitions are required you have to write in your science notebook, बराबर. आप शांति से सब भी definitions भी लिख लेना. and आगे का टॉपिक इट इज अबाउट प्रेशर, प्लीज रीड अबाउट इट. ओके, उसका थोड़ा रीडिंग कर लो, वेरी इजी चैप्टर. ओके, अगर रीडिंग किया होगा तो बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो. ओके, बाय. Thank you.